Good afternoon students, welcome to today's video lecture of limits and derivatives. We were doing exercise 13.1 in the last video lecture. So let us start from where we had finished and continue. Exercise 13.1 में last time हमने question number 31 किया था. Okay, पहले question number 29 solve करते हैं. Let a1, a2 till an be fixed real numbers. Here a1, a2 till an are fixed real numbers का मतलब क्या है? Are fixed real numbers मतलब they are given constants, उनकी value fixed है. So a1, a2 till an they belong to R, they are constants, are fixed real numbers मतलब उनकी value fixed है but they are real numbers. अब उन्होंने पूछा है fx क्या दिया हुआ है? fx is given as x minus a1 into x minus a2 till x minus an. दो अलग अलग केसेस है. What is limit x tends to a1? फर्स्ट केस में क्या पूछा है? लिमिट x tends to a1 fx. अब आप देखो यहाँ पे फंक्शन fx क्या दिया हुआ है? यहाँ पे फंक्शन fx डायरेक्टली दिया हुआ है. This is given x minus a1, x minus a2 till x minus an. तो ये है प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स x minus a1 into x minus a2 dot 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 till x minus an. अब यहाँ पे x किसको अप्रोच कर रहा है? x यहाँ पे एक फिक्स नंबर a1 को अप्रोच कर रहा है. यहाँ पे x एक फिक्स नंबर a1 को अप्रोच कर रहा है. ये लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है. ये लीनियर पॉलिनोमियल मतलब ये क्या हो गया? अगर मैं इसको एक्सपांड करूंगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? एल्जेब्रिक फंक्शन या पॉलिनोमियल फंक्शन. सो दिस इज कंटीन्यूअस. तो इसकी लिमिट कैसे निकाल सकते हैं? x की जगह पे अप्रोचिंग नंबर a1 हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. और आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए fx यहाँ पे कितना दिया हुआ है? fx is given as here fx which is given as x minus a1 into x minus a2 dot 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 till x minus an. You can write this as, that is खाली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, x minus a1 into x minus a2 into x minus a3 dot 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 till x minus an. ठीक है. तो यहाँ पे आप लिख लो fx क्या दिया हुआ है? x minus a1 x minus a2 into x minus a3 dot 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 till x minus an. रिजल्ट नंबर 1 गिवन है. अब a1 a2 a3 till an are fixed real numbers मतलब a1 एक फिक्स्ड रियल नंबर है. तो x को फिक्स्ड रियल नंबर a1 को अप्रोच कर रहा है. ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं. ये कंटीन्यूअस फंक्शन. तो कंटीन्यूअस फंक्शन की लिमिट कैसे मिलेगी? x की जगह पे अप्रोचिंग नंबर a1 सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या आएगा? a1 minus a1 into x की जगह पे क्या लिखना है? a1. so a1 minus a2 into a1 minus a3 dot 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 into a1 minus an. because सीधा लिख दो algebraic functions are continuous. algebraic polynomial functions are continuous. ठीक है. अब a1 minus a1 क्या आएगा? 0. तो 0 into anything is 0. तो इसकी लिमिट कैसी आएगी? 0. so this will be how much? 0 into a1 minus a2 into a1 minus a3 dot 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 till a1 minus an. 0 into anything is 0. so therefore limit x tends to a1 f of x is 0. question number 29 I believe. yes question number 29 का first. question number 29 का first. yes limit x tends to a1 fx is 0. अब similarly अगर कोई आपको पूछता है कि find limit x tends to a2 तो a1 a2 till an are fixed real numbers. खाली मैं आपको similarly नोट करके अगर पूछा है limit x tends to a2 fx okay, तो ये क्या हो जाएगा? limit x tends to a2 limit x is approaching a2 fx. तो can I say limit x tends to a2 fx क्या है? it is product of fx कितना दिया है? x minus a1 x minus a2 into x minus a3 till x minus an. that function is defined and it is given like this. up a2 is a fixed real number. a2 is a fixed real number. so x is approaching a fixed real number a2 और ये
पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल, तो ये पूरा प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटीन्यूअस। तो मैं कैसे कर सकता हूं उसकी लिमिट, x की जगह पे अप्रोचिंग फिक्स नंबर a2 सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। तो पहले में क्या आएगा, a2 minus a1 into a2 minus a2 into a2 minus a3 dot dot into a2 minus an, because ये सारे फंक्शंस क्या है, पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटीन्यूअस। और ज्यादा अगर आपको नहीं आता तो ये x इन्वॉल्व करता है, और x जिसमें इन्वॉल्व होता है वो अलजेब्रिक फंक्शन होता है, और सारे अलजेब्रिक फंक्शंस कंटीन्यूअस होते हैं। तो ये आंसर क्या आएगा, a2 minus a1 into 0 into a2 minus a3 dot dot into a2 minus an। तो ये आंसर में क्या आएगा, 0। therefore limit x tends to a2, f of x क्या है, 0। so can you come to one conclusion extra, limit x tends to a1 fx will be equal to limit x tends to, ये मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं, तो आप समझ गए कि limit x tends to a1 fx exists, limit x tends to a2 fx exists, दोनों इक्वल टू 0 होंगे, डॉट 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 सारे लिमिट्स, लिमिट x tends to an fx वो भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब लिमिट x tends to a1 fx 0, लिमिट x tends to a2 fx 0, लिमिट x tends to a3 fx भी 0, लिमिट x tends to a4 fx भी 0, लिमिट x tends to a of n minus 1 fx भी 0, और सिमिलरली लिमिट x tends to a n fx वो भी 0। तो ये सारे लिमिट का वैल्यू 0 आएगा। मैंने दो समझा दिए, टेक्स्ट बुक में एक ही पूछा है जो पहले मैंने आपको समझा दिया है, बट जस्ट वन कंक्लूजन। नाउ सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है कि फॉर सम a, नाउ हियर सेकंड पार्ट के लिए, फॉर सम a हियर a इज अ रियल नंबर एंड a is not equal to a1 a2 a3 till an, that is given। उसका मतलब एक फिक्स रियल नंबर है a, बट वो a is not equal to a1, a is not equal to a2, a is not equal to a3 dot dot till a is not equal to a। अब उन्होंने पूछा है कि फाइंड लिमिट x tends to a fx पूछा है, मतलब a1 a2 a3 till an वो तो फिक्स रियल नंबर्स हैं, पर a भी एक फिक्स नंबर है, पर नॉट इक्वल टू a1 a2 a3 till an, दिस इज गिवन। सो देयरफॉर उन्होंने पूछा है लिमिट x tends to a fx। अब आपको पता है कि fx का डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, fx is given as product of x minus a1 into x minus a2 into x minus a3 dot 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 till x minus an। Now try to understand what I am trying to say, linear polynomial linear polynomial linear polynomial linear polynomial, so algebraic function continuous, x किसको अप्रोच कर रहा है, x एक यूनिक नंबर एक फिक्स रियल नंबर a को अप्रोच कर रहा है। तो कंटीन्यूअस अलजेब्रिक फंक्शंस का लिमिट कैसे निकाल सकते हैं, कंटीन्यूअस अलजेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शंस का लिमिट कैसे निकाल सकते हैं, x की जगह पे अप्रोचिंग नंबर a को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो कितना आएगा आंसर, a minus a1 into a minus a2 into a minus a3 dot 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 into a minus an। और आप समझो a is not equal to a1 तो ये 0 नहीं होगा, a is not equal to a2 तो ये 0 नहीं होगा, a is not equal to a3 तो ये 0 नहीं होगा, a is not equal to an ये 0 नहीं होगा। तो ये सारे नॉन जीरो नंबर्स का प्रोडक्ट है, वी डोंट नो, इट विल बी अ नॉन जीरो रियल नंबर। और टेक्स्ट के पीछे आंसर है a into a1 a minus a1 into a minus a2 dot 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 till a minus an। इसका लिमिट कितना आएगा, a minus a1 a minus a2 till a minus an, और ये क्या होगा, is this limit non-zero number which is not equal to 0, this limit will not be equal to 0, this limit is not equal to 0, that is non-zero real number। क्यों, क्योंकि a is not equal to a1 a is not equal to a2 a is not equal to a3। तो अगर कोई पूछे कि इस लिमिट का वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू fx का वैल्यू क्या है, वैल्यू होगा a minus a1 a minus a2 a minus a, और वो इक्वल टू 0 कभी नहीं होगा, वो नॉन जीरो रियल नंबर होगा। Am I clear? ओके, सिंपल, टफ नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा देख के आपको थोड़ा और लगेगा, बट स्टिल ना, लेट अस सॉल्व टू क्वेश्चंस। Okay. First, question number 28 and 32. Both are very nice questions. Now, if
आपको पता है कि सपोज लिमिट x टेंड्स टू a fx exists. Okay. What I'm trying to say कि if, ये आपको पता होना चाहिए, दो चीजें मैं लिख देता हूं. If limit x tends to a plus fx exists and left hand limit, right hand limit both exist, if both are equal, if both are equal and both exist, both are equal to L, right hand limit around a, left hand limit around a exists, both are equal to L, then we can say that limit x tends to a fx is L. ये आपको पता है. फिर कंटिन्यूटी में क्या था, आपको याद है डेफिनेशन, f is continuous at x is equal to a. तो क्या डेफिनेशन था, तो तब क्या था, लिमिट x tends to a fx must be equal to f of f is continuous at x is equal to a, f is continuous at x is equal to a. तो क्या डेफिनेशन था, तो डेफिनेशन था लिमिट x tends to a fx is equal to f of a. वो तो मैंने लिखा. एक तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, और दूसरी चीज कि लिमिट x tends to a fx equal to L. Suppose limit x tends to fx exists and it is equal to L. तो what we can say, then we can say double implication. इसी चीज को समझ लो कि right hand limit exists, limit x tends to a fx exists, left hand limit exists, limit x tends to a minus fx exists, and both are equal to L. ये आप समझ गए. और next point कि continuity at x is equal to a, can you recollect? f is continuous at x is equal to a. तो उसमें क्या था कि लिमिट x tends to a fx, लिमिट x tends to a fx. इसका मतलब क्या था, इसका मतलब अभी मैंने आपको समझाया कि लिमिट x tends to a fx एग्जिस्ट करना चाहिए, f of a एग्जिस्ट करना चाहिए, और बोथ इक्वल होने चाहिए. f is continuous at x equal to a, then we can say limit x tends to fx is f of a. और इसका मतलब क्या, since the limit exists, उसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट अराउंड a, राइट, लेफ्ट हैंड लिमिट अराउंड a exists, right hand limit around a exists. कंटिन्यूटी में क्या होता है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, उसमें लिमिट ऑफ fx अराउंड a exists, f of a, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू a exists, बोथ आर इक्वल. इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट exists, राइट हैंड लिमिट exists, value of the function at x equal to f of a exists, and all three are equal. All three must be equal. Understood? ये आपको याद रहना चाहिए. Fair enough? ये आपको पता है. अब now let us solve the question number 31 and 32. Question number 31 and 32. 31 and 32. Sorry, 32 and 20. Yes. Question number पहले solve करते हैं 20. क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करते हैं. fx कितना दिया हुआ है, here fx is, here fx they have given, fx is given as fx का वैल्यू. now here fx का डेफिनेशन उन्होंने दिया है, fx is equal to a plus bx जब x is less than 1. fx का वैल्यू कितना है 4 जब x is 1, और fx का वैल्यू कितना है b minus ax when x is greater than 1. दिस इज गिवन. कैसा लिखो, तो इसको आप ऐसा लिखो कि for x less than 1 fx कितना, for x less than 1 fx is a plus bx. x का कोई भी वैल्यू less than 1, तब आपको फंक्शन fx क्या रखना पड़ेगा, लेस देन 1 में फंक्शन a plus b, ग्रेटर देन 1 में क्या रखेंगे b minus ax. और फिर आप लिखो कि at x is equal to 1 fx क्या दिया है, at x is equal to 1 fx क्या दिया हुआ है 4. मतलब फंक्शन का वैल्यू at x is equal to 1 4 है, दैट इज, इसका मतलब f of 1 x की जगह पे 1 रखने पर मुझे फंक्शन का वैल्यू कितना मिलेगा 4. तो f of 1 is 4. ये हो गया हमारा पूरा रिजल्ट नंबर 1. आप समझ गए. अब what I will do is that I will be solving on the right side only. I will be solving on the right side only. और फिर मैं आपको समझा दूंगा. अब
यहाँ पे कुछ रिलेशन दिया है कि if limit x tends to 1 fx is f of 1। हाँ तो मैं फिर लिखता हूँ ये चीज उनको यूज करेंगे, इसे मैं लेफ्ट में रखूंगा। अब आपको पता है कि if limit x tends to 1, if limit x tends to a, fx is f of a। ये आपको याद है, limit of fx around a is equal to value of the function at x is equal to a। if limit x tends to a, fx is equal to f of a, then we say f is continuous, then we say f is continuous at x is equal to a। okay, so here क्या दिया हुआ है, here we have given limit x tends to 1, here we have given limit x tends to 1, fx is f of 1। limit x tends to 1, f of x is f of 1। a की जगह पे क्या दिख रहा है 1, ये given है। So can you say in exams what they write, इसी क्वेश्चन को खुद टीचर्स कैसे पूछते हैं कि if में वो लोग लिखते हैं f is continuous at x equal to, that is what they are doing, they always give f is continuous at x equal to 1, they will not mention this thing, they will not mention this thing। okay, so here limit x tends to 1, fx is f of 1। so can I say f is continuous, f is continuous at x is equal to 1, f is continuous at x is equal to 1। okay, now इतना समझ में आया कि if limit x tends to fx is equal to f of a, then we say f is continuous at x equal to a। this given तो उसका मतलब f is continuous at x equal to 1। अपने सॉल्यूशन में अगर आप ये नहीं लिखोगे इतना तो भी चलेगा। मैंने ये क्यों समझाया, बिकॉज इन द स्कूल एग्जाम इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस रिलेशन द टीचर विल गिव f is continuous at x equal to 1, उसका मतलब ये हो, यही आपको समझना है। तो ये फंक्शन है, तो सबसे पहले फॉर x लेस देन 1 fx a plus bx, for x greater than 1 fx b minus ax, and at x is equal to 1 fx का वैल्यू 4, उसका मतलब जब x के यहाँ पे 1 रखूंगा मैं तो फंक्शन का वैल्यू 4, तो f of 1 is 4। ओके, अब देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा और मैं राइट साइड में ही सॉल्व करूंगा। ये स्टैंडर्ड इजी 2 मार्कर है, एंड समटाइम्स some school teachers they ask this for 3 marks also। I will tell you why। ये लिखा now here simple, जो राइट साइड में भी लिखा था, सपोज यू डोंट राइट इट्स ओके, राइट। सो ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 f of x is 4, उसका मतलब कैन आई से लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, उसका मतलब लेफ्ट हैंड ओके, इतना मैंने लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 f x is f of 1, f of 1 कितना है 4, दिस इज गिवन। यहां से मैंने बोला f of 1 कितना है 4, सो लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x कितना आया, समझ गए, बाय वन ऐसा लिखता हूं इसे, यहां से ये f of 1 is 4, ठीक है, is f of 1 is 4, पूरा रिजल्ट 1 है, f of 1 is 4। ओके, ना ये आ गया। अब अगर ये लिमिट 1 है, इसका मतलब ये लिमिट x टेंड्स टू 1 fx is 4, उसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सिस्ट, राइट हैंड लिमिट एक्सिस्ट, लिमिट x टेंड्स टू 1 plus fx and both are equal and both must be equal to 4 by definition। तो ऑब्वियस ये जो मैंने अभी आपको समझाया कि बाय डेफिनेशन ऐसा ही होगा, अगर वो लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx 4 है, तो उसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 minus fx is equal to लिमिट x टेंड्स टू 1 plus fx is equal to 4। सपोज ये रिलेशन नंबर 2 है, तो अब इसका मतलब कैन आई से लेफ्ट हैंड लिमिट 4 है, कैन आई से लेफ्ट हैंड लिमिट 4 है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट 4, राइट हैंड लिमिट 4। सो देयरफॉर left hand limit is 4 and right hand limit is also 4। ओके, इसको भी आप रिजल्ट नंबर 2 कर सकते हो, या तो इसको रखो या इसको रखो ना। अब मैं सॉल्व करता हूं ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाला क्वेश्चन। हियर लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस क्या है, अब x टेंड्स टू 1 माइनस का मतलब क्या होता है, now here x tends to 1 minus का मतलब क्या, x tends to 1 minus, therefore x is less than 1, तो तब fx क्या आएगा, x less than 1 में fx a plus bx, fx क्या लिखेंगे a plus bx,
आई होप आई एम क्लियर। एग्जाम में आपको ऐसा बाजू में रिलेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो x टेंड्स टू 1 माइनस मतलब x इज लेस देन 1, तो fx की जगह पे आप सीधा लिखो a plus bx इज मैंने रीजन खाली कर दिया। अब मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस उसमें x इज लेस देन 1, तो fx की जगह पे a plus bx लिखो। अब ये फंक्शन क्या है, a plus bx कैसा फंक्शन है, a plus bx में x द वेरिएबल a और b कांस्टेंट, ये लीनियर फंक्शन है, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन कंटीन्यूअस होते हैं, तो x की जगह पे अप्रोचिंग नंबर 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, सो a plus b into 1 is equal to 4 because polynomial functions are continuous, तो उस लॉजिक से see now this thing is very clear कि ग्रेटर देन 1 में क्या है और लेस देन 1 में क्या है, वो तो हम लिख चुके हैं। So that's why, so therefore a plus b into 1, a plus b into 9, therefore a plus b is 4, that will give us relation number 3, that will give us relation number 3। ये ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये आपको याद हो चुका होगा, इसलिए ये मैं रब कर देता हूं। अब पहला रिलेशन मुझे मिल गया a और b के बीच में, मुझे a और b ढूंढने हैं, इजी है। नाउ सिमिलरली एंड आप देखो रिजल्ट नंबर 2, राइट हैंड लिमिट भी कितना था, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx कितना था 4/2। ओके अब समझो हियर x टेंड्स टू क्या है 1 प्लस, उसका मतलब x इज ग्रेटर देन 1 और x इज ग्रेटर देन 1 में फंक्शन fx कितना था, टेक्स्ट में देखो x इज ग्रेटर देन 1 में b माइनस ax था, बस और कुछ नहीं, वही लिख लो। therefore limit x tends to 1 plus fx क्या आएगा b minus ax and that is equal to 4। अब ये फंक्शन कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल, उसकी लिमिट कैसे मिलेगी, x की जगह पे अप्रोचिंग नंबर 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, b minus a into 1, so that is 4 because polynomial functions are continuous, अब आप देखो हमको a और b का वैल्यू ढूंढना है, तो हमारे पास दो इक्वेशन होने चाहिए a और b ढूंढने के लिए, that's fine, so therefore b minus a is 4, so therefore b minus a is 4, question number 28, yes, so b minus a कितना आया, so that is b minus a is 4, that is our relation number 4। now here a plus b कितना है, a plus a is 4, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, b plus a is 4, रिजल्ट 3 और इधर आप लिख दो b minus a b 4, रिजल्ट नंबर 4। नाउ इट्स योर चॉइस हाउ यू आर सॉल्विंग, आप b को सब्स्टिट्यूट करके a का वैल्यू निकालो व्हाटएवर वे, मैं इन दोनों को ऐड करके मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करता हूँ। मेन थिंग इज कि दो इक्वेशन मिल गए a और b में, अब आपको सॉल्व करने हैं 3 plus 4, b plus b 2b plus a minus a gets cancelled 8, so b is 8/2, you can write directly, therefore b is 4। now a plus b is 4, therefore a plus 4 is 4, so therefore a is 4 minus 4, therefore a is 0, therefore a 0 आया और b 4 आया, simple। 3 marks for what, 1 mark half mark for finding f of 1 which is 4, और वो लिखने के लिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to right hand limit, are you understanding, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट 4 और राइट हैंड लिमिट भी 4, वहां तक आप करोगे तो 1 या 1 मार्क हाफ मार्क मिल जाएगा। फिर you can say half mark for getting a plus b is 4, half mark for getting b minus a is 4, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर लेके आओ, so a is equal to 0, b is 4, that is half mark। so standard 2 mark question 3 marks में होगा, तो a plus b is 4 वहां तक 1 मार्क, b minus a is 4 वहां तक 2 मार्क्स, सॉल्व करके a का वैल्यू सही 2.5, b का वैल्यू उसके लिए आता है, so 3 मार्क्स, अंडरस्टूड। a plus b 4 लेके आओ उसके लिए 1 मार्क, b minus a 4 लेके आओ उसके लिए 1 मार्क और मार्क्स, so easy 3 mark and a standard 2 mark question। question number 28। now same way let us solve question number 32। it is a very nice question, मुझे लग रहा है। fx कितना दिया हुआ है, fx is given as mx square plus n when x is less than 0,
is equal to nx plus m, nx plus m where 0 less than equal to x less than equal to 1 is equal to n into x cube plus m when x is greater than 1. For what integers m and n? So here m and n are integers, तो हिसाब लिख दो. Here m and n are integers, so you can write m belongs to z, n belongs to z. If I am not wrong, z ही होता है हमारे सिलेबस में या i होता है. Integers मुझे याद नहीं है, सेट्स में हमने किया था. तो इंटीजर्स किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Yes, z ही था. Okay, so that part is done. Here m and z are integers. अब उन्होंने को दिया हुआ है कि for what integers m and n does both limit x tends to 0 fx and limit x tends to 1 fx exist. So here they have given limit x tends to 0 fx exist, comma, and limit x tends to 1 fx exist. ये दिया हुआ. Okay. अब for what values, for what integers m and n this both limit exist. ये दिया हुआ है. Limit x tends to 0 fx exist and limit x tends to 1 fx exist. अब जरा समझना, ये लेफ्ट साइड में मैंने जानबूझ के लिखा है. Here m and n are integers. Okay. अच्छा समझना, मैं राइट में ही सॉल्व करूंगा तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा. Now here limit x tends to 1 fx and limit x tends to 0 fx exist. Okay. First case हम सोच सकते हैं कि limit x tends to 1 fx exist. ये लिमिट एग्जिस्ट करती है उसका मतलब क्या है? ये लिमिट एग्जिस्ट करती है उसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट 1 minus fx exist और राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 plus fx एग्जिस्ट करेगा. लिमिट x टेंड्स टू 1 minus fx और लिमिट x टेंड्स टू 1 plus fx बोथ एग्जिस्ट करेंगे एंड बोथ विल बी इक्वल टू सिंपल, बोथ विल बी इक्वल. अब आप समझो कि फॉर, मैं समझा रहा हूं, फॉर x टेंड्स टू 1 minus, for x tends to 1 minus, x का वैल्यू क्या होगा? लेस देन 1. For x tends to 1 minus, for x tends to 1 minus, x का वैल्यू क्या होगा? लेस देन 1. x का वैल्यू लेस देन 1 होगा, पर x का वैल्यू क्या होगा? 0.99999999. तो 0.9999 मतलब तब x का वैल्यू किसके बीच में आना चाहिए? टू बी प्रिसाइज 0 और 1 के बीच में. तो तब fx को मैं क्या कंसीडर करूंगा? तब मैं fx जब x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में आएगा तब nx plus n रखना है. nx plus n ये आपको समझना पड़ेगा. for x tends to अब समझो पूरा क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में जो लिखा हुआ है आपने लिख दिया है. तो अब आपको समझना है कि लिमिट x tends to 1 fx exist, तो उसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट. अब लिमिट x tends to 1 minus x less than 1 और उसमें x का वैल्यू किसके बीच में आएगा? x का वैल्यू होगा 0.9999. तो तब x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में आएगा, तब fx nx plus n है. तो मैं कहना राइट लाइक दिस. सो फॉर x tends to 1 minus, मैं सीधा लिख सकता हूं fx is nx plus n. Okay. For x tends to 1 plus, x का वैल्यू ग्रेटर देन 1, पर x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 उसका मतलब x का वैल्यू क्या होगा? 1.00001. x का वैल्यू होगा 1.00001 मतलब वो किसके बीच में आना चाहिए? वो 1 और 2 के बिटवीन ही आएगा. तो 1 और 2 के बिटवीन है मतलब वो ग्रेटर देन 1 ही हुआ. तो तब fx क्या है? तब fx कितना है? तब fx ग्रेटर देन 1 में nx cube plus m है. nx cube plus m. सो कहना राइट फॉर x tends to 1 plus fx में क्या रख सकता हूं? nx cube plus m. परफेक्टली राइट. अब ये दोनों चीजें जो दी हुई हैं अच्छे तरीके से हियर एग्जाम में अगर आप ऐसा लिखो कि पूरा पोर्शन आप अवॉइड करो, एग्जिस्ट, therefore can I say limit x tends to 1 minus fx, left hand limit exists, right hand limit exists and both are equal, both must be equal.
अब ओके x टेंड्स टू 1 माइनस मतलब x टेंड्स टू 1 माइनस मतलब x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1 मतलब वो 0 से छोटा नहीं होगा, 0 से छोटा नहीं होगा। वो फंक्शन कैसा होगा, वो फंक्शन उस टाइम पे fx का वैल्यू 0 और 1 के बीच में आएगा। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस मतलब 1 माइनस मतलब वो 0 और 1 के बीच में, मतलब मैं सीधा लिखूंगा nx plus m will be equal to limit x tends to 1 plus x tends to 1 plus मतलब x is greater than 1 मतलब 0 और 1 और 2 के बीच में मतलब greater than 1 ही होगा, greater than 1 में nx cube plus m और आप सीधा से लिखते हो given। तो मैंने अभी थोड़ा डिटेल में समझाया होगा, पर ये यहाँ से आपको आइडिया आ है कि x tends to 1 minus में nx plus m और 1 plus में, जिसको डाउट हो उसके लिए लिखा है। अब ये फंक्शन कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल। ये कैसा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल फंक्शन x की जगह पे अप्रोचिंग नंबर 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, n into 1 plus m is equal to इसमें n into 1 cube plus m। इसका मतलब because polynomial functions are continuous। कंटीन्यूअस फंक्शन है तो कंटीन्यूअस फंक्शन की लिमिट कैसे मिलेगी, उसमें x की जगह पे अप्रोचिंग नंबर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये क्या आ गया n plus m is n plus m। now n plus m is n plus m, ये कौन सा रूल है, n plus m is n plus m, n plus m is n plus m, it is commutative law, is true for is commutative law is commutative law। या कहना राइट n plus m is equal to n plus m is true for all m belongs to z, n belongs to z, that is वो commutative law है। इसके लिए आपको पता है कि commutative law m plus n for any two integers m plus n is equal to n plus n वो सही है। अरे commutative law नहीं है ये, m plus n is n plus n होता है, n plus m is equal to n plus n, ये true ही होगा ना। so n plus m is equal to n plus m is true for all m belongs to z and n belongs to z। इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी for all integers, मतलब आप कोई भी इंटीजर ले लो, n और m कोई भी इंटीजर लोगे तब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इससे सॉरी कम्यूटेटिव लॉ नहीं था माय मिस्टेक। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx exists for all m belongs to z n belongs to z, मतलब सारे इंटीजर्स m और n कोई भी आप इंटीजर रखो ये हमेशा ट्रू ही स्टेटमेंट लेने वाला है, ये हमको मिलता है। मैंने वो लिमिट एग्जिस्ट करती है ऐसा लिया, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट करता है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, पूरा सब्स्टिट्यूट किया, n plus m is equal to n plus m आया, उसका मतलब ये is always true, is always true, is always true for all m belongs to z, n belongs to z। इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब so limit x tends to 1 fx exists for all m belongs to z and n belongs to z, मतलब it exists for all integers, मतलब m और n कोई भी इंटीजर को चेक करो, exists for any integral value of m and n। और इस चीज को उसने पीछे लिखा है कि उसी चीज को हम लिख सकते हैं therefore limit x tends to 1 fx exists for any integral मतलब integer, integral value of m and n exists for any integral value of m and n। ओके डन। अब सेकंड केस में क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एग्जिस्ट करती है। हियर सेकंड पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एग्जिस्ट करती है, उसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, एंड बोथ आर इक्वल। ओके अब आपको पता है कि फॉर x टेंड्स टू 0 प्लस या 0 माइनस उसमें हमको करना पड़ेगा, तो ध्यान से करो कि फॉर x टेंड्स टू 0 माइनस, फॉर x टेंड्स टू 0 माइनस x इज लेस देन 0, पर वो वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू कैसे होगा, x का वैल्यू होगा माइनस 0 पॉइंट कितना आएगा, माइनस 0.0001। तो x टेंड्स टू 0 माइनस मतलब x इज लेस देन 0 बट x विल बी वेरी 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 नियर टू 0, तो वो माइनस 0.001 मतलब वो माइनस 1 और 0 के बीच में लेस देन 0 भी है, तो तब fx कितना दिया हुआ है, लेस देन 0 में।
इट इज गिवन एज mx square plus n. I got this mx square plus n. तो आप सीधा याद रखो कि for x tends to 0 minus जब x less than 0 होता है तब fx आएगा mx square plus n. फिर therefore for x tends to 0 plus x is greater than 0, understood, but x का वैल्यू 2, 3, 4 या 1 करोड़ नहीं होगा. वैल्यू ऑफ x tends to 0 plus का मतलब x is greater than 0 but very very near to 0. उसका मतलब x का वैल्यू 0.00001 मतलब x का वैल्यू किसके बीच में आना चाहिए? 0 और 1 के बीच में. और जब x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में आता है तो फंक्शन क्या दिया हुआ है? nx plus n. nx plus n. तो आप समझ गए कि for x tends to 0 plus फंक्शन fx कितना है? nx plus n. और अगर ये आपको डिटेल में नहीं लिखना है तो आप कट डाउन करके लिख सकते हो. ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा है ताकि आप पूरी चीज मैं 2 बार समझा रहा हूं तो आप समझ जाओगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एग्जिस्ट दिया है. दिस लिमिट एग्जिस्ट उसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, right hand limit exists, limit x tends to 0 plus fx exists and both must be equal up. x tends to 0 minus मतलब x is less than 0, x is less than 0 तो तब सीधा x tends to 0 minus less than 0 में फंक्शन क्या दिया हुआ है? mx square plus n equal to limit x tends to 0 plus x tends to 0 plus मतलब x is greater than 0, x is greater than 0 मतलब it is not greater than 1, it is nearer to 0 तो वो आएगा 0.00001 मतलब वो 0 और 1 के बीच में और 0 और 1 के बीच में fx दिया है nx plus n राइट गिवन डायरेक्टली लिख सकते हो गिवन. ओके अब यह आपसे बात करो और x is 0 minus fx और x is 0 plus fx सिंपल. अब आप क्या कर सकते हो? ये फंक्शन कितना है? पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ये क्या है? लिनियर पॉलिनोमियल. तो now polynomial functions में खाली से लिखते हैं polynomial functions are continuous. पहले से मैंने स्टेटमेंट लिखा तो therefore polynomial functions are continuous. तो continuous functions का लिमिट कैसे मिलेगा? continuous function का लिमिट कैसे मिलता है? x की जगह पे approaching number 0 सब्स्टिट्यूट कर दो. उसका मतलब m into 0 square plus n is equal to n into 0 plus m. 0 square 0 0 into m. So m into 0 plus n is n into 0 plus m. क्या है? 0 plus n is equal to 0 plus m. उसका मतलब ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो n is equal to m चाहिए. n is equal to m चाहिए. n is equal to m. n is equal to m. मतलब ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? Therefore m is equal to n जहाँ पे m is an integer, n is an integer. तो ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? लिमिट x to 0 fx एग्जिस्ट करती है और m is equal to n मतलब जब m और n इक्वल होंगे तभी एग्जिस्ट करेगी अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगी. हाँ सो वही चीज लिखी है और सो देयरफॉर लिमिट x is equal to 0 लिमिट x tends to 0 fx exists for m is equal to मतलब ये कब एग्जिस्ट करेगी? ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? लिमिट x tends to 0 fx कब एग्जिस्ट करेगी? जब m और n इक्वल इंटीजर्स होने चाहिए. when m और n is equal to n और हाँ बाजू में लिख दो m is an integer, n is an integer. फिनिश. n is equal to n is equal to लिखा है m is equal to सही है. आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा. बराबर. नाउ इसके बेस पे और एक अच्छा क्वेश्चन है सो लेट मी सॉल्व दैट फर्स्ट. एक है और एक सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. इलस्ट्रेशन में दे हैव नॉट गिवन दिस काइंड ऑफ सम दैट इज रियली स्ट्रेंज. एक दो क्वेश्चन उन्होंने दिए भी नहीं है. जस्ट वांट टू टेक इट सो व्हाट एंड देन आई विल कंटिन्यू. सो मतलब उन्होंने क्वेश्चंस इस टाइप के दिए ही नहीं है एक्सरसाइज अरे इलस्ट्रेशंस में and then they are giving directly the answer. So अच्छे तरीके से जैसे मैं लिखता हूँ वैसे आपको लिखना पड़ेगा. कौन सा क्वेश्चन बाकी था? Yes, क्वेश्चन नंबर 30 बाकी है. ओके क्या दिया हुआ है?
कि fx is mod x plus 1 when x is less than 0, 0 when x is 0, और कितना लिखा है mod x minus 1 when x is greater than 0. ओके, पहले mod x के बारे में लिख लो. mod x क्या होता है? plus x when x is greater than 0. mod x क्या होता है? minus x when x is less than 0, और mod x होता है 0 for x is equal to 0. क्वेश्चन नंबर मैं कर रहा हूं 30. ओके, नाउ mod x क्या है? पहले पूरे क्वेश्चन में mod x दिया है, इसलिए मैं लिख देता हूं कि we know हमको पता है mod x क्या होता है? plus x when x is positive, mod x होता है minus x when x is less than 0, और mod x होता है 0 जब x is 0. here fx क्या दिया है? here fx is given as mod x plus 1 जब x is less than 0. fx का वैल्यू दिया है 0 जब x is 0, और fx का वैल्यू है mod x minus 1 जब x is greater than 0. ओके, तो तब तो नहीं है. लेस देन 0 में mod x क्या होगा? minus x. ग्रेटर देन 0 में mod x क्या होगा? x. तो therefore आप लिख दो fx हो जाएगा लेस देन 0 मतलब minus x plus 1 when x is less than 0 will be equal to 0 when x is equal to 0 will be equal to x minus 1 for x is greater than 0. समझ गए? So for, अब आपको समझ में आ जाएगा, for x less than 0 फंक्शन क्या है? fx minus x plus 1. for x greater than 0 फंक्शन क्या है? x minus 1. at x equal to 0 फंक्शन fx क्या है? 0. उसका मतलब दैट इज x की जगह पे 0 रखने का फंक्शन का वैल्यू कितना आता है? इसका मतलब दैट इज f of 0 is 0. ये आपको याद रखना है. गिव दिस एज रिजल्ट नंबर 1. ये आपको नॉलेज पता होना चाहिए mod x का. ये गिवन फंक्शन है, इसको मैंने वहां पे mod x की जगह पे minus x रखा बिकॉज़ x is less than 0. x greater than 0 पे mod x plus x हो जाता है, वो मैंने लिखा, और इस कंक्लूजन पे हम पहुंचे कि ये रिलेशन मैंने डिफाइन कर दिया. मतलब मैंने फंक्शन को स्प्लिट कर दिया. इसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन या ब्रोकन फंक्शन. लेस देन 0 के लिए फंक्शन, ग्रेटर देन 0 के लिए, और इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन का वैल्यू. अब उन्होंने कुछ पूछा कि फॉर व्हाट वैल्यू और वैल्यूज ऑफ a does limit x tends to a fx exists. We have to find here, we have to find, okay, limit x tends to a exists, limit x tends to a fx exists for what value or values of a. अब आपको पता है कि x is the variable, a is the constant. तो x अप्रोच करता है a को, तो a एक रियल नंबर होगा. a एक रियल नंबर होगा, तो मैं क्या लिखता हूं? For limit x tends to a fx, x is variable that you know, and a is constant, and a is given constant. That is, I can say it's a real number. तो फिक्स रियल नंबर होगा, और कोई भी रियल नंबर, ओके, लेफ्ट राइट साइड पे मैं नहीं लिखूंगा, राइट साइड का पोर्शन में रखूंगा, मैं लेफ्ट साइड पे लिखूंगा. हमको यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू fx exists for what values of a हमको फाइंड करना है. तो लिमिट x टेंड्स टू x वेरिएबल है, a गिवन कांस्टेंट है, मतलब a इज अ रियल नंबर. नाउ फॉर a belongs to r, for a belongs to r, वो नंबर क्या हो सकता है? a कैसा हो सकता है? a can be positive, or a can be negative, or a can be zero. अब समझे? मतलब a is a real number. तो for real number a, it can be positive or negative or equal to 0. तो पहला केस मैं रखता हूं, पहला केस मैं रखता हूं कि a is positive real number. Case 1, a is positive real number. A is positive real number. A is greater than 0. A is positive real number. Here, for limit x tends to a fx, x tends to a,
एंड ऑब्वियसली x इज नॉट इक्वल टू a। अब इधर से ऐसा मैं लिखूं उससे बेटर है, हमको लिमिट x टेंड्स टू fx ढूंढना है। मैंने बोला लिमिट x टेंड्स टू fx में a इज अ रियल नंबर, सो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पहला केस a इज पॉजिटिव रियल नंबर फॉर हियर x टेंड्स टू a। नाउ हियर x टेंड्स टू a, जहां पे a पॉजिटिव रियल नंबर है, so can I say x approaches a where a is positive, मतलब x approach करेगा 1 को, 2 को, 3 को, 4 को। so can I say since x goes nearer to positive real number, since x approaches positive real number, can I say therefore x is positive। अगर आप x की जगह पे 1 रखो, अरे a की जगह पे, ओके, x approaches a is greater than 0, let, मैं खाली आपको समझाने के लिए लिख रहा, let a is 1, तो कैन आई से x टेंड्स टू 1, तो उस केस में x का वैल्यू कैसे आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। चेक कर 0.9999 या 1.0001। अगर कोई सोचता है x की जगह पे 3, तो x का वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा, लेट a इज इक्वल टू 3 में रखता, तो कितना आएगा, x इज पॉजिटिव ही आएगा, क्यों 2.9999 या 3.0001। तो ये आपको पता चल गया। कोई बोलेगा सर आप a को रखो, let me keep a as 0.01, तो x tends to 0.1, okay, let me keep 0.1। हाँ, 0.1 मतलब क्या, 0.1, तो 0.1 के आसपास मतलब कितना आएगा, 0.11, ये 0.10 है, तो 0.1111 या 0.00009, तो भी x पॉजिटिव ही होने वाला है। इसका मतलब x is approaching a which is positive, so definitely x is greater than 0, x is greater than 0, और x is greater than 0 के लिए हमने फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया है, fx is x minus 1, fx is x minus 1। अब हम वो लिमिट निकालते हैं, लिमिट x tends to a fx when a is positive real number, so ये हो गया। I hope I'm clear, I hope I am clear, yes। So अब मैं निकाल रहा हूँ लिमिट x tends to a, therefore now I am finding limit x tends to a fx, which is limit x tends to a, fx कितना है जब x is greater than 0, x minus 1। हाँ, और यहाँ पे हमने लिखा है limit x tends to fx where a is positive real number, and since a is positive, can I say x is positive, इसलिए fx is x minus 1। ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो वापस समझाने की जरूरत नहीं है। ओके, दैट पार्ट इज क्लियर, तो ये वापस समझाने की जरूरत नहीं है, तो इधर ही अब मैं खत्म कर देता हूं। राइट साइड सो उसका मतलब यहां पे आपको क्या मिला कि फॉर x टेंड्स टू a when a is positive real number, so ये सब पूरी चीज करो, for x tends to a, वापस नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, जब a is positive real number, x is positive और इसके लिए fx आया x minus 1। एग्जाम में अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो ऐसा कि लिमिट x tends to a greater than 0, fx को क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a, कितना है fx, x minus 1। और हाँ, एक ऐसा फंक्शन है, ये x a को अप्रोच कर रहा है जो कि पॉजिटिव रियल नंबर है, उसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है, x की जगह पे a सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आंसर क्या आएगा, a minus 1, बिकॉज़ पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटीन्यूअस। उसका मतलब लिमिट क्या है, therefore limit x tends to a, okay wait, आराम से छोटा सा लिखा होता तो बेटर रहता, खत्म हो जाता, 2 मिनट में आंसर। सो हियर मैंने आपको समझा दिया a is positive real number, here x approaches a where a is greater than 0, therefore positive real number, therefore x is positive, वो आप समझ गए। और x is positive में फंक्शन fx क्या है, x minus 1, yes। तो अब x tends to a, so limit x tends to a, fx पूछा है जब a is positive, तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं fx,
लिमिट x टेंड्स टू fx कितना है x माइनस 1, तो मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा हूं और यहां पे मैं अब ये लिमिट निकाल रहा हूं। तो ये x माइनस 1 ये पॉलिनोमियल है जहां पे x अप्रोचेस है, सो कह रहा है सब्स्टिट्यूट x की जगह पे a माइनस 1 बिकॉज़ इज इक्वल टू a minus 1 because polynomial functions are continuous. Okay, so therefore क्या है आंसर, लिमिट x tends to a fx is a minus 1 for a greater than 0. तो अगर a greater than 0 है तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो कितनी है, so if a greater than 0 लिमिट x tends to a fx कितना आया a minus 1, उन्होंने दिया नहीं है, they are not given, क्वेश्चन नंबर 30। ओके उन्होंने दिया है कि इट एग्जिस्ट, तो पॉजिटिव रियल नंबर में ये आंसर आएगा जब a पॉजिटिव रियल नंबर है। अब सेकंड केस कंसीडर करो, सेकंड केस कंसीडर करो, सेकंड केस कंसीडर करो। सेकंड केस क्या है, a इज नेगेटिव रियल नंबर, a इज नेगेटिव रियल नंबर, a is negative real number. Here x tends to क्या है, a is negative. Let a, suppose मैं रखता हूं a को मैं रखता हूं -1, खाली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो तब x tends to -1, x tends to -1 मतलब x की वैल्यू क्या होगी, -1.0001 या x की वैल्यू होगी -0.9999, कहने से x will be negative। अगर a को आप रखते हो -5 तो x टेंड्स टू क्या आएगा, -5, तब भी x का वैल्यू क्या होगा, -4.9999 या -5.0001, तो उस केस में भी x का वैल्यू लेस देन 0 ही होने वाला है। अगर कोई स्टूडेंट बोले कि सर आप a को रखो नेगेटिव रियल नंबर -0.01, -0.1 अगर आप रखते हो -0.01, ओके -0.001, तब भी x टेंड्स टू क्या आएगा, -0.001। ओके तो x का वैल्यू तो अब क्या होगा, तब x का वैल्यू -0.001 से छोटा नंबर या -0.001 से बड़ा नंबर कोई भी आप कंसीडर करोगे, इट विल बी नेगेटिव, इट विल बी नेगेटिव ओनली। तो जब x अप्रोचेस है व्हेन a इज नेगेटिव, कैन यू से डेफिनेटली x इज अप्रोचिंग अ नेगेटिव नंबर, हियर x टेंड्स टू क्या है, हियर x टेंड्स टू a है जहां पे a इज लेस देन 0, तो डेफिनेटली x इज लेस देन 0 और लेस देन 0 में fx क्या है, -x+1, so fx is -x+1, so therefore finished, therefore हमको पूछा है लिमिट x tends to a fx, लिमिट x tends to a fx जब a is less than 0, और तब मैं बता चुका हूं तब fx था -x+1, that is -x+1, अब x की जगह पे आप अप्रोचिंग नंबर a सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, that is -a+1 which you can write as 1 plus -a which you can write as 1 minus a, 1 minus a, because the simple reason polynomial functions are continuous। okay तो ये लिमिट कितनी आई, 1 minus a, so less than a less than 0 में कितनी आई, a less than 0 में, so therefore limit x tends to a fx, limit x tends to a fx will be equal to 1 minus a when a is less than 0। आप समझ गए, क्लियर, ओके सिंपल है, अच्छा क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई therefore limit x tends to a fx for a less than 0 क्या है आंसर, 1 minus a, so आप क्या याद रखोगे, is equal to 1 minus a, तो आप क्या याद रखोगे, if a less than 0 limit x tends to a fx वो हो जाएगा 1 minus a। अब कौन सा केस रह गया, अब कौन सा केस रह गया, ओके चलेगा। अब ये मैं हटा देता हूँ, ये मुझे लेफ्ट में लिखना है, ओके तो आपको याद रखना है कि if a greater than 0 limit x tends to a fx क्या आया था, a greater than 0 में a minus 1,
और दूसरा इफ a लेस देन 0 तक लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट एंड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस a। ये आपको याद रखना। थर्ड केस क्या है? थर्ड केस होगा a is 0, a is 0 तो x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0। तो अगेन दो केस आएंगे फिर उसमें x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 प्लस x टेंड्स टू 0 माइनस। सो अब थर्ड केस जो है, थर्ड केस में पहला केस क्या था? a इज पॉजिटिव रियल नंबर, a इज नेगेटिव रियल नंबर। सेकंड केस था, अब मैं लिख रहा हूं a इज 0, बेसिक सा रियल नंबर। हियर x टेंड्स टू क्या है? a। सो कैन आई से नाउ x टेंड्स टू 0 हो जाए। सो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू a fx it becomes limit x tends to 0 fx, limit x tends to fx becomes limit x tends to 0 fx। अब for x tends to 0 when x is not equal to 0 we have two cases। we have क्या होगा? x tends to 0 plus when x is greater than 0 and x tends to 0 minus when x is less than 0। तो इसमें दो केसेस आएंगे, मतलब राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। बिकॉज़ a 0 तो x टेंड्स टू a, so x टेंड्स टू 0। तो अब ये लिमिट x टेंड्स टू 0 fx के ढूंढने के लिए अब हम क्या करेंगे कि फॉर x टेंड्स टू 0 प्लस में जाएंगे और x टेंड्स टू 0 माइनस में जाएंगे। नाउ फॉर x टेंड्स टू 0 प्लस x is greater than 0, that's obvious। To be precise, it is between 0 and 1। तब fx क्या है? Greater than 0 में fx क्या है? x minus 1। तो therefore मैं लिख रहा हूँ limit x tends to, I will not write limit x tends to a plus। मैं पहले लिख रहा हूँ limit x tends to 0 plus fx। x tends to 0 plus fx में कितना है? x minus 1। So I will not mention those results now। Okay, therefore मैं स्ट्रेट लिख देता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस के टाइम पे x माइनस 1 इधर लिखा हुआ है। अब ये फंक्शन कैसा है? लीनियर फंक्शन। तो लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटीन्यूअस, इसकी जगह पे अप्रोचिंग नंबर 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, 0 माइनस 1 बिकॉज़ पॉलिनोमियल functions are continuous। okay, तो अब आप समझे कि therefore राइट हैंड लिमिट कितनी है? अराउंड 0 माइनस 1। ओके, अब x टेंड टू 0 माइनस में जाना है आपको, तो वो आप खुद डिराइव करो ऑप्शन इट। therefore for x tends to 0 minus when x is less than 0। वो एक्चुअली कौन से दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में होगा? -1 और 0। तब fx क्या है? लेस देन 0 में fx क्या है? -x प्लस। प्लीज इसको जो भी रिजल्ट नंबर देना है वन एंड ऑल वी नो इट, -x प्लस 1। ठीक है। अब नाउ you can find the left hand limit on your own। therefore limit x tends to 0 minus fx is equal to limit x tends to 0 minus x tends to 0 minus तब fx minus x plus 1 है, minus x plus 1। अब आप x की जगह पे अप्रोचिंग नंबर 0 सब्स्टिट्यूट कर दो। -0 मतलब क्या? माइनस x मतलब -1 into 0 plus 1। ओके, -0 नहीं होता है, ये एक्चुअली -1 into x है प्लस 1 है, so -1 into 0 plus 1 because polynomial functions are continuous, so that is 0 plus 1 which is 1। तो अल्टीमेटली लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई? 1। 0 plus 1 equal to 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई? लिमिट x tends to 0 minus fx आया -1। राइट हैंड लिमिट कितना था? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx वो 1 था। दिस इज 1, सॉरी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज 1। लेफ्ट हैंड लिमिट
x माइनस 1 बनाएगा और 0 में -1 आएगा। Yes. So, just one minute. कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी क्वेश्चन नंबर 30। ओके, सही है। लेफ्ट हैंड लिमिट आती है 1 और राइट हैंड लिमिट आती है -1। राइट हैंड लिमिट x to 0, परफेक्ट। हाँ, तो राइट हैंड लिमिट इज -1। right hand limit I minus 1. So right hand limit exists, left hand limit exists, but both are not equal. Yes or no? Therefore, limit x tends to 0, fx does not exist. So therefore, limit x tends to 0 plus fx. Right hand limit exists, left hand limit x tends to 0 minus fx वो भी exist करती है। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx वो भी एग्जिस्ट करती है, बट बोथ आर नॉट इक्वल। वन इज नॉट इक्वल टू -1, ये -1 है और ये 1 है, सो दे आर नॉट इक्वल। तो उसका मतलब देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx does not exist। लिमिट x टेंड्स टू 0 fx does not exist here। that for here a is 0 for limit x tends to a fx। ये सब तो उसका मतलब इसकी जगह a की जगह पे 0 अप्लाई हम करेंगे, तो उसका मतलब कहना है राइट है for limit x tends to a fx। a 0 है ना, so limit x tends to a fx does not exist at a is equal to 0। और ऑलरेडी ये दो रिजल्ट लिख चुके हैं, तो ये दोनों रिजल्ट हैं। और दूसरा if a is 0, if a is 0, आप समझ गए? मतलब x जब 0 होगा तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो लिमिट x टेंड्स टू fx does not exist at a is equal to 0। तो ये पहला केस था, दूसरा केस था, तीसरा केस इधर लिखता हूं कि a is equal to 0 लिमिट x tends to a fx does not exist। उसका मतलब ग्रेटर देन 0 के लिए एग्जिस्ट करता है तब लिमिट आएगा a माइनस 1, लेस देन 0 के लिए लिमिट एग्जिस्ट करता है तब आएगा 1 माइनस a, और ग्रेट लेस देन 0 ओके माइनस a प्लस 1 प्लस एंड ग्रेटर देन 0 में a माइनस 1 परफेक्ट। तो अब देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं? ग्रेटर देन 0 में एग्जिस्ट करती है, लेस देन 0 में एग्जिस्ट करती है। सो देयरफॉर आई कैन राइट लिमिट x टेंड्स टू fx exists for a not equal to 0। यस, ऐसा लिखा है। देयरफॉर आई कैन राइट लिमिट x टेंड्स टू a fx exists for a not equal to 0। और दूसरा लिमिट x टेंड्स टू a fx does not exist at a is equal to 0। finished। और वो लिमिट क्या है वो भी बता चुका। Understood? Very nice question। You can say one of the best questions you will come across। सारे डाउट्स कि लिमिट क्या है, कैसे करना है, आपको समझ में आ गए होंगे और अब मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी डाउट होगा। Fair enough? Okay, अब let us continue with few questions। So we have finished from 23 to 32 and we have also finished question number 1 to 12। तो अब जो बाकी के 10 क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स वाले ही हैं। Let me see trigonometric limits or let me revise the other formulas which we have done। Just 1 minute। So, okay, it is better if I just revise or solve few questions of the same type which we have already done। Okay, उसके लिए हाँ एक रिजल्ट जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं आपको सिखा देता हूँ रिजल्ट्स which we have done के लिमिट x tends to a x raised to n, लिमिट x tends to a x raised to n क्या था? a raised to
ओके सो उसका एप्लीकेशन लिमिट x टेंड्स टू 4, x क्यूब क्या आएगा, x की जगह 4 रख दो, 4 क्यूब 64, लिमिट x टेंड्स टू सपोज -1 x स्क्वायर हो, तो x स्क्वायर अप्रोच कर रहा है -1, तो x की जगह पे -1 सीधा -1 रेज टू 2 1, और अगर क्वेश्चन में है लिमिट x टेंड्स टू अंडर x रेज टू 4, तो 0 रेज टू 4 which will be 0, ठीक है। फिर एक रिजल्ट था आपको याद रखना है कि लिमिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, मतलब अगर आप वेरिएबल चेंज कर दोगे तो रिजल्ट, लिमिट के रिजल्ट में कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि लिमिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल। तो हमने एक रिजल्ट लिखा था लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a। ये टाइप क्या था, वेरिएबल x अप्रोचिंग a, वेरिएबल x अप्रोचिंग a, यहां पे क्या होना चाहिए वेरिएबल रेज टू n माइनस वो अप्रोचिंग नंबर a रेज टू n अपॉन वेरिएबल माइनस कांस्टेंट x माइनस a। तो इसका आंसर क्या है n इनटू a रेज टू n माइनस 1। तो सिमिलरली वी कैन आल्सो राइट लिमिट y टेंड्स टू t, y टेंड्स टू t, अगर यहां पे है y रेज टू n माइनस t रेज टू n अपॉन y माइनस t, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसमें वेरिएबल कौन है y, कांस्टेंट कौन है t, तो आंसर आएगा n इनटू t रेज टू n माइनस 1। और अगर जरूरी नहीं है कि हमेशा x ही वेरिएबल हो, तो हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू x h रेज टू n माइनस x रेज टू n अपॉन h माइनस h वेरिएबल है, x कांस्टेंट है, तो इसका आंसर आएगा n इनटू x raised to n minus 1। You get this? Okay. यहाँ पे वेरिएबल x था कांस्टेंट a, वेरिएबल y कांस्टेंट t, वेरिएबल h कांस्टेंट x। आंसर इस रिजल्ट में कांस्टेंट a के टर्म्स में, कांस्टेंट t के टर्म्स में, कांस्टेंट x के टर्म्स में आएगा। अब दो सम्स करते हैं, ओके, इस टाइप के सम्स करते हैं। Let us do one or two questions based on this. Okay. Let us solve few questions based on this. Just 1 minute. Okay. First question is okay, limit x tends to, first simple question is limit x tends to, okay, limit x tends to ओके, सिंपल इक्वेशन ढूंढ रहा हूं। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 3, ओके, लिमिट x टेंड्स टू 3 x रेज टू 5 माइनस 243 अपॉन x माइनस 3। 3 रेज टू 5 क्या होता है वो मुझे चेक करना पड़ेगा। 3 into 3 into 3 into 3 into 3 240। yes, write this as limit x tends to 3, this is x raised to 5 minus 3 raised to 5 upon x minus 3। उस फॉर्म रिजल्ट आ गया, n की जगह पे x और n की जगह पे 5 और a की जगह पे 3 है, तो आंसर क्या आएगा 5 into 3 raised to 5 minus 1, so 5 into 3 raised to 4, 5 into 3 raised to 4। ऐसा है, तो रिजल्ट लिख लो, because limit x tends to a x raised to n, प्लीज लिखो तो अच्छा है, because limit x tends to a x raised to n minus a raised to n upon x minus a क्या होता है n into a raised to n minus 1। तो आंसर देखो क्या आएगा, अब आंसर देखो क्या आएगा, that will be answer will be 5 into 81, so 81 into 5, 81 into 5, that turns out to be 405। okay, दूसरा क्वेश्चन लिखो। See, अभी मैं वही क्वेश्चंस बताऊंगा आपको जो आप सीख सकते हो। सेकंड एग्जांपल, L is limit x tends to 2, limit x tends to 2, सिंपल क्वेश्चन है, limit x tends to 2
Yes, x raised to 5 minus 32, x raised to 5 minus 32 upon x raised to 4 minus 16. Can I write this question as limit x tends to 2, x raised to 5. Expression को write 2 को 32 can be written as 2 raised to 5 and 16 can be written as 2 raised to 4. तो इस रिजल्ट में लाने के लिए x minus a टर्म मिसिंग है. x minus a मतलब x tends to a, तो x minus a, तो x tends to 2, तो x minus 2 टर्म मिसिंग है. तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि here x tends to क्या है, here x tends to 2, here x tends to 2, therefore x is not equal to 2, therefore x minus 2 is not equal to 0. So can I write multiply and divide by x minus 2 not equal to 0 in numerator and denominator. So L लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x tends to 2, x raised to 5 minus 2 raised to 5 upon x minus 2 into x minus 2 upon x raised to 4 minus 2 raised to 4. अब रिजल्ट आपको लिखना है लिमिट x tends to a, x raised to n minus a raised to n upon x minus a. ये रिजल्ट क्या होता है, n into a raised to n minus 1. तो आपको ये पता चल गया कि पहला जो लिमिट है, लिमिट ऑफ फर्स्ट इनटू लिमिट ऑफ सेकंड, ऐसे अलग से बताने की जरूरत नहीं है. तो जब ये लिमिट में इसको लगाऊंगा एग्जैक्टली सेम फॉर्म में है, तो इसका लिमिट पहले का लिमिट हम कैसे निकाल सकते हैं, n की जगह पे 5 और a की जगह पे 2. तो आंसर आएगा 5 into 2 raised to 5 minus 1, n into a raised to n minus 1. तो इसका आंसर आएगा 5 into 2 raised to 5 minus 1. ओके, into ये लिमिट इसके रेसिप्रोकल के फॉर्म में है, ये लिमिट इसके रेसिप्रोकल के फॉर्म में, तो ये आंसर 1 अपॉन में जाएगा. सो 1 अपॉन n की जगह पे 4 और a की जगह पे 2, तो आंसर क्या है 1 अपॉन n मतलब 4 into 2 raised to 4 minus 1. So 5 into 2 raised to 4 into 1 upon 4 into 2 cube. See, it's your choice. Okay, so 5 into 16 into 1 upon 4 into 1 upon 8. तो ये आंसर आएगा 4 1 जा 4, 8 1 जा 8 2 जा, और I will write 5 into 16 upon 8 4 जा 32. So which is actually 16 5 जा, sorry. Okay, 80 upon, this is 80 upon 32, 80 upon 32, और आप 80 upon 32 8 से डिवाइड करो, 16 5 जा 16 2 जा 5 by 2 का आंसर. 5 by 2 must be the answer. Simple question. 5 by 2. अब दो अच्छे क्वेश्चन करते हैं. सो फॉर्मूला एप्लीकेशन आपको आ गया, ये फॉर्मूला एप्लीकेशन आपको आ गया. अब आपको मैं सिखाऊंगा एक अच्छा क्वेश्चन which we have not done. के लिमिट x tends to, a very popular question 1 मार्क के लिए काफी बार आता है. लिमिट x tends to 2 x raised to n minus 2 raised to n upon x minus a, and x minus 2 is given as 80 और n ढूंढना है. This is given, find n. This is given, n ढूंढना है, find n. If क्वेश्चन है if limit x tends to this, then find n. Okay, so now limit x tends to 2x raised to n minus 61. तो सीधा रिजल्ट अगर आप लगा दो, और हाँ यहाँ तक लिखा था, तो आपको पता है ये कौन से फॉर्म में है, n into x tends to a, x raised to n minus a raised to n upon x minus a. तो ये रिजल्ट हो जाएगा n into 2 raised to n minus 1 which is equal to 80, because
लिमिट x टेंड्स टू a, x raised to n minus a raised to n upon x minus a is equal to n into a raised to n minus a. ओके, अब मुझे n ढूंढना है, कैसे करें? यहाँ पे आप देखो n into 2 raised to n minus 1, तो ये 80 है, मुझे 2 raised to यहाँ पे n into 2 raised to, यहाँ पे मुझे 80 का फैक्टराइजेशन करना है such that it should be 2 के पावर के साथ into a fixed number. तो कैन आई राइट दिस एज 5 into 16, 16 5 80 होता है. Can I write this as n into 2 raised to n minus 1, which is 5 into 2 raised to 4. See, there is no other method so that you can understand. Next topic भी समझाऊंगा, ऐसा और एक क्वेश्चन भी अगर मिलेगा I will try to solve. तो ये हो गया n into 2 raised to n minus 1 is 5 into 2 raised to 5 minus 1. Check. 80 2 raised to चाहिए तो 5 into 16 65 is 80, so n into 2 raised to n minus 1 2 raised to 4 और 4 को लिखो मैंने 5 minus 1 का कंपेयर करोगे डायरेक्टली n की जगह पे क्या दिख रहा है, n की जगह पे 5 दिख रहा है, n की जगह पे 5 दिख रहा है. अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि ऐसा ही क्यों किया. नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. n into 2 raised to n minus 1, तो अगर मैं करता हूं n into 2 raised to n minus 1 as 10 into 8, that I can write as something like this, 10 into 2 cube. So n into 2 raised to n minus 1, this I can write as 10 into 2 raised to 4 minus 1. तो देखो n का वैल्यू सेम नहीं आएगा. So n into 2 raised to n minus 1 is equal to 10 into 2 raised to 4 minus 1. इसमें अगर आप कंपेयर करो तो n is 10 और n is 4 आता है, तो गलत है, तो ये नहीं हो सकता. कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर आप इसको ऐसा लिखो 8 4, so 20 into 4, so 20 into 2 square, 20 into 2 square, तो ये हो जाएगा 20 into, आप समझ गए. So therefore n into 2 raised to n minus 1, this you can write as 20 into 2 raised to 3 minus 1. तो n 20 और n 3 एक साथ ऐसे कैसे हो सकता है, तो गलत है. तो वैसे ही आप नहीं कर सकते और ऐसे ही फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा. as simple as that, nothing another option. Okay, और एक क्वेश्चन, let me see, is it possible? It is possible. Okay, so limit x tends to 2, x raised to n is equal to 8. It is given as 488. 488 is given as 488. 448. 448 find n. If question आप लिखो, if limit x raised to 2 x raised to n minus 2 raised to n x minus 2 n find n. Find n. तो ठीक है, आपको ट्राई करना पड़ेगा. आप कर देते हैं. ओके, तो सोचो कैसे आप करोगे. थिंक अबाउट दिस इज गिवन एज 444. ओके, सो ये रिजल्ट कितना हो जाएगा. देयरफॉर n into 2 raised to n minus 1 is 448. ओके, मैं लिख देता हूं n into 2 raised to n minus 1 is 448. अब 448 आप देखो 2 के पावर्स क्या है 16, so 448 divided by 30. What you do is that you try to get the maximum power of 2 इसके अंदर. So 2 2s are 4, 8 16 32 64. So 448 divided by 64 अगर मैं करता हूँ तो 7 आता है. तो इसको मैं पहले ट्राई करूंगा मैक्सिमम पावर ऑफ 2 के साथ. तो 448 can be written as 7 into 64, 7 into 64, and I believe you would have understood कि क्या आने वाला है. 7 into 64, that I can write as, therefore n into 2 raised to n minus 1 I can write as 7 into 2 raised to 6, 7 into 2 raised to 6, 2 2s are 4, 8 16 32 64. Yes, and that will become 2 raised to n minus 1 is 7 into 2 raised to 7 minus 1. और अब कंपेयर करो दोनों में n का वैल्यू 7 है. therefore okay, मुझे ऐसा लिखना है n is 7 and n is 7, so therefore n is equal to 7. finished. n is equal to 7, therefore
equal to 7. Yes, answer is true. n is equal to 7. I hope no doubt. 32 ले करोगे तो नहीं होगा. 32 into I believe 14 आएगा, so that's why not possible. 14 into 32 या 28 into 16, that is not possible. So that's why n is equal to 7. That's one minute. Let me see if I can teach you few more theoretical points revision. Okay. Before winding up, I will. अब ये आपको आ चुका होगा ना. हमने चेंज ऑफ वेरिएबल वाले भी एक दो क्वेश्चंस किए थे. हमने एक दो चेंज ऑफ वेरिएबल वाले भी क्वेश्चंस मैंने आपको सिखाए थे. सो लेट मी टीच यू वन और टू सच नाइस क्वेश्चंस इफ इट इज पॉसिबल. जस्ट वन मिनट. कैन आई गेट जिसमें लिमिट चेंज करनी हो. ओके, जस्ट राइट फाइंड लिमिट. क्वेश्चन है ओके, f is limit h tends to 0, limit h tends to 0, 5 plus 2h, 5 plus 2h raised to minus 1 minus 5 raised to minus 1 upon h. 5 plus 2h raised to minus 1. I think so. ये क्वेश्चन है. Yes. Let me check. यही है. Let me check one of the reference book. मतलब ये क्वेश्चन वही है. Limit h 0, 5 plus 2h raised to minus 1. Yes. ये लिमिट ढूंढना है. Limit h tends to 0, 5 plus 2h, 5 plus 2h raised to minus 1. हमको फाइंड करना है 5 plus 2h raised to minus 1 minus 5 raised to minus 1 upon h. ये अच्छा क्वेश्चन है. ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज बीइंग डन बाय मी. अब इधर आप देखो, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा, इस पूरे रिजल्ट को मैं कन्वर्ट करूंगा इनटू विच फॉर्म. इसको मैं कन्वर्ट करूंगा इन लिमिट x टेंड्स टू x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n अपॉन x माइनस a. h अप्रोचेस 0. 5 plus 2h, h वेरिएबल है तो 5 plus 2h भी वेरिएबल होगा. इसका पावर -1 है और h की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करने पर 2 into 0 0, 0 plus 5 5, ये भी 5 आता है. तो इसको कन्वर्ट हम कर सकते हैं. तो let 5 plus 2h, let 5 plus 2h आप t ले लो, 5 plus 2h आप t ले लो. अब 5 plus 2h में h वेरिएबल, उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ वेरिएबल t में. 5 plus 2h में h वेरिएबल है, उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ t में. नाउ हियर अब h टेंड्स टू 0 है तो t किसको टेंड करेगा वो ढूंढना है. हियर h टेंड्स टू 0, देयरफॉर 2h किसको टेंड करेगा 2 into 0, देयरफॉर 2h टेंड करेगा 0. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो 2h टेंड करेगा 0 को. 5 plus 2h किसको टेंड करेगा, देयरफॉर 2h टेंड्स टू, और अगर आपको डायरेक्ट लिखना है h टेंड्स टू 0 तो 2h 2 into 0 0 लिख दो, वो भी चलेगा. So 5 plus 2h tends to 5 plus 0. So 5 plus 2h tends to 5. Therefore 5 plus 2h क्या है? 5 plus 2h क्या है? t. So t tends to 5. So t tends to 5. Okay, वो भी मार्क कर लो. अब ये क्वेश्चन में वेरिएबल h है. हम यहाँ पे वेरिएबल h टेंड्स टू 0 और हम h को वेरिएबल t में कन्वर्ट करेंगे t टेंड्स टू 5, पर हमको h वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा वेरिएबल t में. नाउ हियर 5 प्लस 2h कितना है t. ये काफी अच्छा क्वेश्चन है. 2h कितना हो जाएगा t minus 5, तो h कितना हो जाएगा t minus 5/2. टेक्स्ट बुक से जो भी क्वेश्चन दिए हैं टेक्स्ट बुक में, उससे काफी 1 और 2 लेवल हाई क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए. दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस. और ऐसा होगा तो रोज में से एक दो क्वेश्चंस करूंगा तो आपका नॉलेज इंप्रूव होगा. सो लिमिट h टेंड्स टू 0, हियर वी आर हैविंग, therefore L is limit h टेंड्स टू 0, 5 plus 2h raised to minus 1 minus 5 raised to minus 1 upon h. इसे वेरिएबल h था. ओके, और h से हम कन्वर्ट कर रहे हैं t में. 5 plus 2h को क्या लिखा था t. तो ये l कितना हो जाएगा, वेट मैं करेंगे क्वेश्चन था. ओके, सो अब l क्या होगा, लिमिट वेरिएबल h है और वेरिएबल h. नाउ हियर हमने जो सब्स्टिट्यूशन किया था, ओके ओके ओके
That's clear. So here limit h tends to 0 5 plus 2h 5 plus h वेरिएबल है h tends to 0 था तब t tends to क्या था 5 so limit t tends to 5 5 plus 2h क्या है t raised to minus 1 minus 5 raised to minus 1 अपॉन h क्या था h वहां पे था t minus 5 by 2 वहां पे h क्या था h क्या है t minus 5 by 2 t minus 5 by 2 अब ये 2 किधर चला जाएगा ये 2 को आप न्यूमरेटर में सप्लाई कर दो तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा therefore l हो जाएगा लिमिट t tends to 5 और मैं लूंगा t raised to minus 1 minus 5 raised to minus 1 upon t minus 5 into 2 okay now आपको पता है लिमिट x tends to a x raised to n minus a raised to n upon x minus a क्या होता है n into a raised to n minus 1 इस फॉर्म में पहला रिजल्ट है और ये कांस्टेंट है तो लिमिट ऑफ कांस्टेंट क्या होता है लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट क्या होता है कांस्टेंट तो पहले में लिमिट ऑफ फर्स्ट इनटू लिमिट ऑफ सेकंड मतलब जो पहला ब्रैकेट में है वो इस फॉर्म में है लिमिट x टेंड्स टू a x raised to n minus a raised to n upon x minus a उस फॉर्म में है तो उसमें लिमिट लगा दो n into मतलब क्या है n into 5 raised to a raised to n minus 1 into limit of a constant limit t tends to 5 2 constant है कितना आएगा 2 तो फाइनल आंसर आएगा -1 into 5 raised to -2 into 2 अब आप इसको सिंपलीफाई तो आ गया आंसर What is the answer? -1 into 2 is -2 upon so -2 into 1 upon 5 square which is -2 upon 25. Yes, -2 upon 25. And you can write as -2 into 1 by 25. Just 1 minute. ओके तो आप समझ गए कैसे ये सॉल्व करना है अच्छा क्वेश्चन था टफ नहीं था पर कैसे मैंने लिमिट चेंज किया आपको समझ में आ गया होगा और ऐसे टाइप के और एक दो क्वेश्चन भी मैं आपको करके दूंगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा मोस्टली डाउट तो नहीं रहेगा मोस्टली they not prefer to ask this kind of questions you must understand these questions also because ये questions MCQ गेट लिए पूछ सकते हैं 1 मार्क के लिए so the final answer is -2 upon 25 and I will end today's video lecture over here only so n is -2 upon 25 finished yes or no okay so that's the way we have finished that's it for today thank you work hard take care don't waste your time and finish referring and going through all these video lectures and making the related notes of limits and derivatives on daily basis और इसके साथ आप अपना पेंडिंग वर्क ऑफ कोनिक्स अगर है या स्ट्रेट लाइंस है खत्म कर दो थैंक यू